Hi students, very good afternoon. This is Sukrut Bhushan here from SSB Academy. Welcome to our Smartly YouTube channel. And this is a very important lecture that I'm uploading on our Smartly channel with regards to important idioms and phrases that are asked in most of the government examinations. All right, so let's start. I want you to keep your pen and paper ready. I want you to keep your notebooks ready. Keep a different SSB English notebook so that you can keep in touch with all the important English chapters that would be asked in your examinations. All right. So the topic for today is idioms and phrases that are asked mostly in most of the examinations, not only in banking and IBPS, but also into CDS, NDA, and also all related UPSC defense examination that includes AFCAT too. All right. Okay. So please make a note of the important idioms. And the idioms that I'm going to highlight in yellow have been asked previously in the previous government exams. So make a note of it. All right. So let's start. The first is decked up. All right. Now, what does it decked up means? Appear particularly appealing and attractive. Now, what do you mean by appealing? For example, अगर मुझे आपको एक example देना है, decked up का मतलब होता है spick and span. Decked up का मतलब होता है a person who is dressed well for the occasion. All right, so please make a note of it. Read the examples that are there in this video. When the consultation began in the evening, the mausoleum of the Chief Minister Jayalalitha and Marina was decked up with flowers. All right, so the question is very simple. What does decked up means? Meaning is to be ready, spick and span. Spick and span का मतलब होता है साफ सुथरे कपड़े पहनना और occasion के कपड़े पहनना. For example, your mother tells you that why don't you decked up for yourself for the evening wedding that we are planning to visit. So decked up. Second, doing the rounds means to pass the information or responsibility from one person to the other. All right, एक example अगर मैं आपको देना चाहूँ तो your father tells you that if you do not complete the task, the responsibility will be going around the corner. This means doing the rounds का मतलब होता है कि आपको एक काम दिया है, but that work is been passed out from one person to the other person. All right, to be passed from one person to the another. So doing the round मतलब आपको imagine ऐसा करना है कि round table के ऊपर सब लोग round बैठे हैं and one responsibility is passed on from one person to the other. You're doing the rounds. Okay, next. Put off. Put off का मतलब होता है बंद कर देना. All right, an evasive reply, especially because you do not want to do it. मैं आपको एक एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूँ put off का मतलब क्या होता है. That your mother gives you a work, but you give her a response that mother, I do not want to do this work because I am busy in my studies. आपको मम्मी ने for example मार्केट से कुछ सब्जी लाने के लिए कहा और आपको वो नहीं करना है because you are busy studying or watching a video. So you give her a very evasive reply, mom, I'm currently studying, so I will not go to the market. So this means put off. Off मतलब आपको पता ही होता है बंद कर देना. एक ऐसा रिप्लाई जो जहां पर आप काम को अवॉइड करते हो उसको कहते हैं put off. All right, make notes as much as possible. Statement number 4 or idiom number 4. Takes a beating. Takes a beating means to be damaged because of performance badly or being criticized. मैं एक example देता हूँ. Virat Kohli took a beating from senior cricketers because he was overconfident about his performance. आई बात समझ में? Takes a beating का मतलब होता है to criticize. For example, your professor or your teacher in your college tells you that if you do not study 3 hours in a day, okay, you're going to take a beating from the society that you are not a successful person. Take a beating matlab to get criticized. Example dekho, Vishal Sikka, who was the former Infosys CEO, had actually quit his position and shares took a beating. Shares taking a beating का मतलब होता है कि जो कंपनी के स्टॉक्स थे, it went down. All right, so that's how. Example number 4. Look at example number 5. मैं इसे जरा अनहाइलाइट कर देता हूँ so that you will also have a clear picture. Okay, example number 5. Turn up the heat or turn on the heat. What does it mean?
टर्न अप द हीट और टर्न ऑन द हीट का मतलब होता है गर्मी बढ़ाना नहीं होता है उसका लिटरल मीनिंग, आपको उसका मतलब समझ में आना चाहिए। टर्न अप ऑन द हीट मीन्स इट्स अ वेरी सिंपल कि प्रेशर बढ़ाना सामने वाले इंसान पे। दिस इज व्हाट इज नोन एज टर्न अप और टर्न ऑन द हीट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे आपको एग्जांपल देना है दैट पाकिस्तान इज नॉट रिस्पॉन्डिंग to the terrorist activity that it is sponsoring, so the Indian army said we will turn on the heat if you do not comply to our demands. हम जो ये इशू है इसमें अगर गर्मी हमने बढ़ा दी तो आपको तकलीफ होगी। सो इट इज नोन एज टर्न अप द हीट और टर्न ऑन द हीट। टू यूज फोर्स, persuade someone to do something or to increase the pressure on to do something particularly। ठीक है, हम कहते हैं ना कि भैया अगर आपने ये काम नहीं किया तो हम आप पे प्रेशर डालना चालू कर देंगे। It is known as turn up the heat or turn on the heat. Next, look at statement number 6. Statement number 6 is rip apart, to destroy something completely. Rip apart का मतलब होता है totally खत्म कर देना। Okay, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इंग्लिश में एग्जांपल। The Indian Air Force decided to rip apart the Chinese counterpart because they were intruding into India's territory. Rip apart मतलब होता है to destroy completely. Seventh statement. Step down. Step down means withdraw or resign from an important position. All right. The opposition leaders, मैं आपको एक example दे रहा हूँ. The opposition leaders asked the Prime Minister to step down because he had failed into implementing policies for the poor people. गरीबों के हित में जो पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिए थी वो हुई नहीं, इसके वजह से ऑपोजिशन लीडर ने प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करने कहा। ओके, नेक्स्ट 8, strike a blow. What does strike a blow means? To do something to help or support an idea, a moment. To do something to harm or oppose an idea, a movement or a group. Again, I'm giving you an example. मैं डिफेंस के बहुत एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। स्ट्राइक अ ब्लो का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज होती है जिसमें हमें अटैक करना बहुत जरूरी है, टू हार्म द अपोजिशन। एग्जाम्पल, द इंडियन नेवी स्ट्रक अ ब्लो ऑन द एनिमीज सबमरीन बिकॉज दे वर एंटरिंग इनटू इंडियन वाटर्स। ओके, स्ट्राइक अ ब्लो। ही स्ट्रक अ ब्लो ऑन द ऑपोजिशंस कॉन्फिडेंस बाय डिक्लेयरिंग न्यू पॉलिसीज। स्ट्राइक अ ब्लो का मतलब जरूरी नहीं है कि उसको मारना ही चाहिए। स्ट्राइक अ ब्लो का मतलब होता है कि उसे हार्म पहुंचाए, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ दो, उसका मनोबल तोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट, होल्ड ऑन। इट्स वेरी सिंपल, टू स्टॉप, टू हिंज ऑन समथिंग, टू पिन ऑन समथिंग। होल्ड ऑन हम कहते हैं ना, डू नॉट वरी, होल्ड ऑन, द सर्कमस्टेंसेस विल लीव। ठीक है, होल्ड ऑन का मतलब होता है, अगर मुझे हिंदी में आपको समझाना है, होल्ड ऑन मीन्स डू नॉट लीव द सिचुएशन, भाग के मत जाओ, रुके रहो, डटे रहो। pull through, get through an illness or other dangerous or different situation. Pull through. Now what does pull through means? Pull through means एक बहुत ही एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर मैं हिंदी में समझाना चाहूँ तो एक बहुत ही डेंजरस बीमारी में आप हो एंड यू हैव पुल्ड योरसेल्फ आउट ऑफ दैट बीमारी, दिस इज नोन एज पुल थ्रू। नेक्स्ट, पम्प्ड अप। पम्प्ड अप का मतलब होता है टू बी एंथुसियास्टिक, एक्साइटमेंट में हम पम्प्ड अप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि सर आई वॉज वेरी पम्प्ड अप टू गिव द गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बिकॉज माई प्रिपरेशन वॉज रेडी, उसको कहते हैं पम्प्ड अप। All right, let's go to the next idiom. Number 13, rope in. rope in का मतलब होता है टू पार्टिसिपेट करना। rope in का मतलब होता है टू हेल्प करना। So if in case there is a statement that shows you rope in, rope का मतलब आपको समझ में आता होता है रस्सी। तो ऐसा समझिए कि मैं रस्सी पकड़ के किसी को इंटरफियर, मैं रस्सी पकड़ के किसी को इनवाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं रस्सी पकड़ के किसी के घर पे जा रहा हूँ, टू
participate. All right, you mean that someone persuaded you to help them to do that task. For example, अगर मैं आपको example देना चाहूँ तो it is very simple. Why don't you rope in into the task that is given to us by the government? This is known as rope in. All right, statement number 14. To win laurels. To win laurel means to win honor. अभी आपको ऑनर का तो मतलब पता ही होता है कि जिसमें बहुत प्राइड होता है, जिसमें अभिमान होता है. All right, to win laurel. It is an honor to win Bharat Ratna award, said the Prime Minister. It is an laurel to win Bharat Ratna award, said Dr. Pranab Mukherjee. Snuffed out. Statement number 15. What do you mean by snuffed out? Now, snuffed out is very simple. It means quickly किसी चीज को खत्म कर देना. To make something end quickly. इसको कहते हैं snuffed out. Especially by using a force. जबरदस्ती से किसी चीज को खत्म करने के लिए हम कहते हैं snuffed out. All right, it was the government's most brutal attempt to snuff out the rebellion. Rebellion का मतलब क्या होता है? जो हमारे against बात करता है. Knockout. Knockout is a term which is preferably used in boxing and karate and taekwondo, but I just give you a little example what is a knockout. Knockout का मतलब होता है defeat करना. एक चीज को मार मार के defeat करने को knockout कहते हैं. तो boxing में कहते हैं कि I knocked him out by my consistent kicks. However, और एक एग्जांपल अगर नॉकआउट का मैं देना चाहूं तो I knocked out the examination by continuously practicing. Sachin Tendulkar knocked down all the bowlers who were trying to bowl him short deliveries. उसको कहते हैं knocked out. Crash out. To be badly defeated. बहुत ही बुरी तरह से अगर आप हार जाते हो तो आप बोलोगे कि I crashed out of the competition. All right, I crashed out. To be badly defeated so that you have to leave the competition. आपको जब कोई हरा देता है तो उसको कहते हैं हम crashing out. Next. 18th पे ध्यान देना. Lay in tatters. Lay in tatters का मतलब होता है to damage beyond repair. किसी चीज को या किसी व्यक्ति को इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दो कि वो रिपेयर ही ना हो पाए. The confidence of Pakistan terrorists laid in tatters because the Indian army gave them a befitting reply. हमारे इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल टेररिस्ट को इतनी बुरी तरह से हराया है कि नाउ their confidence lay in tatters. Turn in का मतलब होता है submit, hand in, मदद करना. Why don't you turn in tomorrow so that we can start the meeting again? Okay, मतलब hand in. Okay. Sweat something out. मतलब खून पसीना एक कर देना. Sweat something out का मतलब होता है कि इतनी मेहनत करो ताकि आपको वो मिले जो आपने डिसाइड किया हो. एग्जांपल देख लेना. With the team selection imminent, Dhoni and Suresh Raina, who last played an ODI for India in October 2015, sweated it out on Friday. Okay, to confirm a seat in the Indian cricket team. What I'm trying to say कि 2015 तक धोनी और सुरेश रैना ने लास्ट ओडीआई खेला, उसके बाद वापस इंडियन टीम में आने के लिए उनको स्वेट आउट करना पड़ेगा. स्वेटिंग समथिंग आउट मतलब ज्यादा मेहनत करो. स्वेट का मतलब होता है पसीना. जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना तुमको फायदा होगा. Keep at bay. This was asked in CDS 2019. Keep at bay means to prevent someone from moving closer. Keep at bay. It's very simple and understand. To prevent someone from moving closer का मतलब होता है कि आपके नजदीक कोई आ रहा है, आप उसको दूर रखोगे और आप अपने आप को भी दूर रखोगे if you think that you are going towards something that is not good. For example, I kept myself at bay because I knew that there was a danger in that city. I kept myself from those people because I felt that they are bad influence. मैंने कुछ लोगों से अपनी दूरी न रखी क्योंकि मुझे लगा वो गलत आदतों में इन्वॉल्व हैं. Keep at bay. 22nd, tone down. Tone down का मतलब होता है, हम हिंदी में कभी कभी एक मुहावरा यूज करते हैं जिसको कहते हैं जबान संभाल के बात करो, अपनी आवाज नीचे रखना. Tone down means altered to be a less extreme
और एन इंटेंस टोन. ऑल्टर द लेक्स एक्सट्रीम एंड एन इंटेंस टोन, अपनी आवाज नीचे रखने को. तो हम कभी अगर इंग्लिश में हमें किसी को कहना है यू बेटर टोन डाउन योर वॉल्यूम बिकॉज यू आर टॉकिंग टू एन एल्डर पर्सन. ओके. 24th, वेयर एंड टेयर. वेयर एंड टेयर का मतलब होता है डैमेज फ्रॉम वर्क और यूज. एक सिंपल एग्जांपल देता हूं. हमारी जो गाड़ी होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको यूज करने पे उसमें वेयर एंड टेयर आ जाता है. सो वेयर एंड टेयर मींस इट्स वेरी सिंपल. कोई भी चीज कंसिस्टेंटली यूज करोगे तो उसमें वेयर एंड टेयर आएंगे. ठीक है. वेयर एंड टेयर इज अ वेरी फेमस इंग्लिश वर्ड. ओके. टिक ऑल द बॉक्सेस. 25th, टिक ऑल द बॉक्सेस का मतलब होता है टू सैटिस्फाई और फुलफिल एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी और डिजायर्ड. मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं. मैंने आपको कोई काम दिया है और वो काम मैंने आपको कहा है कि आई वांट दैट एंटायर वर्क टू बी कंप्लीटेड एंड यू नीड टू टिक ऑल द बॉक्सेस. बच्चों आपने, आई डोंट नो वेदर यू रिमेंबर दिस, हैव यू फिल्ड अप अ फॉर्म? आपने कोई फॉर्म भरा होगा, उसमें आपको बॉक्सेस दिखते हैं, उसमें हम चेक टिक मार्क करते हैं. तो इसका मतलब है कि सारी चीजें हैं हमारे पास. तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, टिक ऑल द बॉक्सेस. इंग्लिश में एक फ्रेज होता है जिसमें मैं कहूंगा मैं आपको एक काम दे रहा हूँ, आप रिटर्न जब आओगे यू मेक श्योर दैट यू हैव डन ऑल द वर्क. ओके. टिक ऑल द बॉक्सेस. बटर फिंगर्स. 26th, बटर फिंगर्स का अगर लिटरली मतलब आप देखोगे तो उंगलियों में बटर लग जाना. अगर आपकी उंगलियों में बटर लग गया तो आप क्या करोगे? आपके हाथों से सारी चीजें फिसल जाएंगी. Someone who is clumsy and often drops things or else fails to catch something. किसी की तरफ आप कुछ फेंकोगे तो कभी कैच नहीं करता और जो हाथ में वो हमेशा छोड़ता है, उसे कहते हैं बटर फिंगर्स. हाथ में बटर लग जाएगा तो क्या होता है. ओके. तो इट्स अ वेरी फेमस सेइंग कि आपने देखा ही होगा कि घर पे कभी कभी कोई कुछ चीजें गिरा देता है तो उसको कहते हैं बटर फिंगर्स. लूज ग्राउंड. टू लूज ग्राउंड. टू फॉल बिहाइंड समवन और बिकम लेस सक्सेसफुल. लूज ग्राउंड का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि जब आप कोई चीज ट्राई करते हो एंड व्हेन यू डू नॉट हैव एनीथिंग लेफ्ट यू लूज ग्राउंड. लूज ग्राउंड का मतलब होता है आपने कोई चीज शुरुआत करी बट नाउ यू आर लूजिंग ग्राउंड एंड यू आर नॉट प्रोसीडिंग अहेड. इसको कहते हैं टू लूज ग्राउंड. ऑलराइट. नेक्स्ट, स्टेम द टाइड. स्टेम द टाइड इज वेरी सिंपल. टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग. ऑलराइट. स्टेम द टाइड. टाइड का मतलब आपको अगर पता ही होगा, टाइड का मतलब होता है समंदर के वेव्स. हम अगर समंदर किनारे खड़े तो आपको समंदर के वेव्स दिखेंगे. सो स्टेम द टाइड मींस टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम इंक्रीजिंग. ये जो समंदर के अगर टाइड ज्यादा बढ़ते गए तो हम डूब सकते हैं अगर हम किनारे में खड़े हैं तो हम उसको इंग्लिश में एक फ्रेज बनाते हैं, स्टेम द टाइड. फॉर एग्जाम्पल, किसी को बहुत गुस्सा आता है सो हम कहेंगे व्हाई डोंट यू स्टेम योर टेम्परामेंट. स्टेम द टाइड विद योर टेम्परामेंट बिकॉज इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. 29, हिंज ऑन. हिंज ऑन का मतलब बहुत सिंपल होता है, टू बी डिटरमाइंड और डिसाइडेड बाय और टू डिपेंड ऑन. आई एम हिंज्ड ऑन माई पेरेंट्स. किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना या किसी के डिसीजंस के ऊपर डिटरमाइंड अपनी लाइफ करना, उसको बोलते हैं हिंजिंग ऑन. इट्स अ वेरी सिंपल इडियम. ऑलराइट. टू हिंज ऑन. नेक्स्ट, मेक और ब्रेक. मेक और ब्रेक मतलब सिंपल हिंदी लैंग्वेज में अगर मैं समझाना चाहूँ, आर या पार. या तो आर हो जाओ, या तो फिर आप कर पाओगे, या तो फिर आप टूट जाओगे. इट इज मेक और ब्रेक. सो मैं एग्जांपल देता हूं. द आर्मी ऑफिसर commanded his soldiers, either you make or either you break but you win the war. या तो करना है या तो मरना है. आर या पार, मेक और ब्रेक. स्टेप अप. स्टेप अप का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, मैं यहां पर टाइप कर देता हूं, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. स्टेप अप. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे आपको एक आंसर करना है, व्हाई डोंट यू स्टेप अप? बिकॉज योर फैमिली इज इन नीड ऑफ मनी. यू हैव टू स्टेप अप. आपके परिवार को जरूरत है तो यू नीड टू स्टेप अप. 35th, बेस्टो डाउन. बेस्टो डाउन का मतलब होता है टू गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन. किसी पे जिम्मेदारी रखने को कहते हैं टू बेस्टो ऑन. टू गिव समथिंग टू समवन और प्रेजेंट समथिंग टू समवन. ओके, बेस्टो डाउन. फॉर एग्जाम्पल, द नाइटहुड हैड बीन bestowed on the West Indian cricketer.
ऑल राइट. सो बेस्टो ऑन का मतलब होता है किसी को कोई ऑनर देना, किसी को कोई टैग देना, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना. 36th, क्रॉस द लाइन. क्रॉस द लाइन इज वेरी सिंपल. इट मीन्स टू चेंज फ्रॉम बीइंग एक्सेप्टेबल टू बीइंग अनएक्सेप्टेबल. एग्जाम्पल देता हूं. आपकी मम्मी ने आपको कभी कभी कहा होगा कि बेटा डू नॉट क्रॉस द लाइन इफ यू कम लेट इन द नाइट. अपनी मर्यादा में रहो, रात को लेट आना घर पे अलाउड नहीं है. उसको कहते हैं क्रॉस द लाइन. ओके, ये सारे मीनिंग्स और एग्जांपल आपको लिखने हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट, पुल्ड ऑफ. टू सक्सीड इन समथिंग दैट इज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल. एग्जांपल, सर आई पुल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन बट during this COVID-19 situation because I studied for 3 to 4 hours. All right. So to pull off का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें कर देना सक्सेसफुली जो पॉसिबल ही नहीं थी कि सिचुएशन बहुत खराब था. The Indian cricket team pulled off a staggering win against Australia when they were down under. 38 and 39 पे ध्यान दो. Bow out, withdraw or retire from an activity or a role. India top mixed double pair Pranav Chopra and Sikki Reddy also seeded 15th, defeated Indo-Malaysian combo Prajakta Sawant and Yajendra Krishnan. What it's trying to say is, retire का मतलब होता है हार मान जाना, because either आप injured हो या तो आपने हार मान लिया है. ठीक है. To bow out means, sir, it was too difficult for me to study English because there was no newspaper and I had to bow out. All right. It leaves, इसका मतलब होता है खेल का मैदान छोड़ देना, हार मानना. कास्ट आउट. कास्ट आउट का मतलब होता है टू फोर्स समवन और समथिंग टू लीव अ प्लेस. बहुत ही सिंपल है. फॉर एग्जाम्पल, इन प्री हिस्ट्री द अनटचेबल्स वर कास्टेड आउट बिकॉज दे वर सफरिंग फ्रॉम मेजर डिजीजेस. इन प्रीवियस हिस्ट्री, इन इंडियन हिस्ट्री, the untouchables were casted out because they were suffering from major diseases. उसको कहते हैं cast out. 41, take a stand. Adopt a firm position about an issue. Take a stand का मतलब होता है जो आपने कहा है उसके ऊपर आपको अमल करना है. What you said you need to follow. I take a stand and if I will fight for my family. Okay, he took a stand and he never came back because he fought for his country. टेक अ स्टैंड का मतलब होता है कि मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा. इसका हिंदी में मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना. अडॉप्ट अ फर्म पोजीशन अबाउट एन इशू. ऑलराइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लू द लिड ऑफ मतलब बहुत ही सिंपल है इसका आंसर. ब्लू द लिड ऑफ का मतलब होता है कि कोई भी चीज को मात्रा से ज्यादा करना ताकि वो फट जाए. फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल वॉज स्टडिंग 18 hours a day and she blew the lid off her concentration because it's very simple, because she was over existing. To make public something that is precisely not known or was hidden. देखो, ब्लू ऑफ के दो मीनिंग होते हैं. एक तो प्रेशर में आके सकम हो जाना. प्रेशर में आके आपका जब सर फट जाता है, जब आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, तब इसका मतलब है आई ब्लू ऑफ माई हेड, अब मुझे नहीं होगा आगे. ठीक है. और सेकेंड होता है ब्लू ऑफ, ब्लू द लिड ऑफ. ब्लू द लिड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज जो छुपा के रखी हुई उसको पब्लिक में लेके आना. ऑलराइट, दैट इज ब्लू द लिड ऑफ. रन ओवर. रन ओवर का मतलब होता है गाड़ी जब किसी के ऊपर आप एक्सीडेंटली चढ़ा देते हो तो उसको कहते हैं रन ओवर. ओके, टू हिट समवन और समथिंग विद अ व्हीकल और ड्राइव ओवर देम. ऑलराइट, सलमान खान आफ्टर टेकिंग लिकर एक्चुअली रैन ओवर few people and killed couple of laborers sleeping on the street. उसको कहते हैं run over. All right. Last two, gearing up. Gearing up का मतलब होता है तैयार होना. To prepare yourself, to prepare something. अभी गाड़ी का गियर होता है, हम जब फर्स्ट गियर में जाते हैं तो ही गाड़ी आगे बढ़ती है, राइट? तो इससे से वो वर्ड आया to gear up. All right. To gear up का मतलब होता है be ready. All right. The Indian hockey team geared up for the finals of the World Cup against Germany. Pinned back, to hold something. Pinned back का बहुत ही सिंपल मीनिंग है. Pinned back का मतलब होता है कि कोई चीज को ध्यान से याद रखना. आपको पिन तो पता ही होती है कैसी होती है. तो पिन हम कहाँ यूज करते हैं? कुछ चीज को अटका देना हो तो pinned back का मतलब है to nothing but hold something.
to nothing but याद रखना है उसको, to remember something. This is known as sprint. All right, students, we have done 45 idioms and phrases. For now, it is good. There are 205 to be precise. मैं इसको 4 part में करूँगा, so that you also have a better idea what exactly needs to be done. And I'm going to break idioms and phrases. बस आपको इतना ही करना है. This is more than enough for you to go and clear the examination. Remember, for students who are giving their defense examination, idioms and phrases come for 10 marks. For IBPS and insurance examination, it will come for 5. So please make it a point that you are good with reading and good with idioms and phrases. Thank you very much. God bless you all.